رمضان المبارک میں اہل ایمان کا جوش اور خروش دیدنی ہوتا ہے اور ہر درد دل رکھنے والا صاحب ایمان رضائے الہی کے حصول کے لیے دل کھول کر عطیات تقسیم کرتا ہے۔ ایسے میں بھکاری مافیا سادہ لو عوام کے آگے ضرورت مندوں کا بہروپ دھار لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں شہر کراچی میں بھکاریوں کی ایک بڑی کھیپ آ دھمکتی ہے۔ شاید ہی کوئی مقام ہوگا جو گداگروں سے خالی ہو۔ یہ سارا ایک منظم مافیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو ہمیں پوری نیشنل لیول پہ قومی سطح پر جو ہے انسداد گداگری جو ہے پالیسی بنانی پڑے گی۔ اسی طرح ہمیں قومی سطح پر جو نیشنل ایک لا لانا پڑے گا، اور اسی طرح صوبوں میں ہمیں لا لا کے اور قومی ایکشن پلان فار انسداد گداگری اور صوبائی ایکشن پلان فار انسداد گداگری بنانے پڑیں گے۔ یہ جو چھوٹی موٹی کیمپینز ہوتی ہیں، وقتی طور پر پریس شو ہوتا ہے، میڈیا کوریج ہوتی ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر نکل جاتی ہے چینل کے ساتھ اور وہ 4-5 گداگروں کو لے کے آ گئی، یہ کاسمیٹک میئر سے کبھی بھی یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں اگر ہم سیف سٹی منصوبہ دبئی کا دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو ملوز قادر رکھا گیا تھا کہ وہ اسباب ختم کیے جائیں۔ بھکاری اور گداگر کے الفاظ سے عام ذہن میں ایک خاص وضع قطع اور خد و خال رونما ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں مانگنے والوں کی متعدد اقسام، نت نئے انداز کی گداگری اور بھانت بھانت کی بھکاری بولیاں سننے کو ملتی ہیں۔ انہی مانگنے والوں میں سے ایک قسم جال ساز NGOs کی بھی ہے، جنہوں نے سادہ لو عوام سے پیسہ بٹورنے کے نت نئے طریقے نکال دیے ہیں۔ زینت حیات تو دنیا اور یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی زینت، اور ایمان والوں یہ ایک دن دنیا پر چھوڑ کر چل بسنا ہے، ساتھ کیا جائے گا؟ جال ساز NGOs کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک میں سرگرم ہو جاتی ہے۔ پرنٹنگ مٹیریل تیار کیا، مانگنے کا ہنر رکھنے والا عملہ بطور رضاکار مارکیٹ میں اتارا، ایک عدد سوزوکی پک اپ لی جس پر ساؤنڈ سسٹم لگایا اور گلی محلوں میں اتر گئے۔ لاؤڈ سپیکرز پر مستحقین، یتیموں اور بیواؤں کے واسطے دے کر سادہ لو عوام کو ایسا مائل کرتے ہیں کہ ہر درد دل رکھنے والا دل پسیج جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو خالی ڈبے شکر کاٹ اٹھا کر میرے یقین کے سر پہ رکھ دے گا۔ جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے خدا رب العالمین پھر اپنے گناہ معاف عطا فرما دے گا۔ کتنے پیسے لیتی ہے میڈم مہینے کے؟ ہاں مہینے کی یہ لے لیتی ہے، کمیشن ہوتا ہے ان کے اوپر۔ کتنا؟ روز کا 2250۔ کاغذ بنانے میں کتنا لیتی؟ کاغذ بنانے میں لے لیتی ہے 8,000۔ ایک بار کتنی دیر کے لیے کاغذ بناتی ہے؟ مہینے کے۔ مہینے کے کاغذ بناتی ہے؟ ہر مہینے 8-7,000 لیتی ہے کاغذ بنانے کی؟ جی۔ مدرسہ تو کوئی ہے نہیں، ایک دفعہ دیتے۔ جال سازی کے یہ مناظر رمضان کے پورے مہینے ہر جگہ نظر آتے ہیں اور اس سارے کھیل میں حق مارا جاتا ہے تو مستحقین کا، جو اپنی خودداری کے باعث کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے سسکتی ہوئی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی جال ساز NGOs اور بھکاری مافیا کے خلاف بارہا کارروائیاں کر چکی ہے، متعدد جال سازوں کو بے نقاب کیا اور متعدد کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کی۔ آج کی ایپیسوڈ میں بھی ایسے ہی حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ٹیم گرفت نے اسپائی نمائندوں کو حرکت دی اور تھوڑے ہی وقت میں ہوش ربا حقائق سامنے آنے لگے۔ ایک گرفت انفارمر نے اطلاع دی کہ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری کی بستی میں 30 سے 40 سوزوکی پک اپ پر مبنی ایک گروہ آباد ہے جو جتھوں کی صورت میں نکلتے ہیں اور شہر بھر میں مانگتے پھرتے ہیں۔ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو خالی ڈبے شکر کاٹ اٹھا کر میرے یقین کے سر پہ رکھ دے گا۔ جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے خدا رب العالمین پھر اپنے گناہ معاف عطا فرما دے گا۔ کپڑے، کھلونے، کھانے پینے کی اشیاء اور نقدی جو عطیات کی صورت میں ملے اینٹس لیتے ہیں۔ ٹیم گرفت نے اسپائی ٹیم کو حرکت دی۔
स्पाई नुमाइंदे ने ख्वाजा अजमेर नगरी से निकलने वाली नाम निहाद एनजीओ की सुजुकी पिकअप में से एक सुजुकी का ताक़ुब शुरू कर दिया। सुजुकी शाह फैसल टाउन के एक इलाके में पहुंची, जहां एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर ने गाड़ी में साउंड सिस्टम सेट किया, एक रिकॉर्डेड आवाज लगाकर गरीब, नादार और मुस्तहिकीन के नाम पर इमदाद मांगना शुरू कर दी, जबकि सुजुकी में मौजूद दूसरा कारिंदा घरों से दस्तक दे देकर इमदाद वसूल करता जा रहा था। दिन भर यही सिलसिला जारी रहा और सुजुकी कारिंदों ने ढेर सारे कपड़े और सामान और बहुत सी नकदी भी जमा की। शाम होते ही सुजुकी कारिंदों ने गाड़ी से साउंड सिस्टम निकाला और इलाके से निकलकर मेन रोड पर रवाना हो गए। स्पाई नुमाइंदे भी गाड़ी का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। सुजुकी पिकअप तवील सफर करके कराची के इलाके मंगोपीर में वाक़े गर्म चश्मा कपड़ा मार्केट पहुंच गई, जहां इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदने वाली एक दुकान पर खैरात की सूरत में मिलने वाले कपड़े बेचकर नकदी हासिल की। खुफिया रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि इसी दौरान कई और सुजुकी कारिंदे भी इसी मार्केट की कई दुकानों पर खैरात में मिलने वाले कपड़ों की फरोख्त कर रहे थे, यानी ये खरीदो फरोख्त मामूल की बात थी। खुफिया रिकॉर्डिंग की सूरत में टीम गिरफ्त के सामने नाम निहाद एनजीओज की सारी सूरत हाल सामने आ गई। टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि स्पाई नुमाइंदों को एनजीओ कारिंदों की सूरत में मंगोपीर के इस्तेमाल शुदा कपड़ों के खरीदार व्यापारियों के पास भेजा जाए और मालूम किया जाए कि किस भाव कपड़े खरीदे जाते हैं। हाँ भाई, अस्सलामुअलैकुम। कहाँ भाग रहे हो? नाज़रीन, ये भाग रहे हैं, वजह इसकी यही है कि ये वही लोग हैं जिनको हमने एक्सपोज किया। इससे पहले भी इनको हम दिखा चुके हैं। स्पाई नुमाइंदे खैराती कपड़े फरोख्त करने वालों के रूप में मंगोपीर की एक दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार को बताया कि वो एक मदरसे से ताल्लुक रखते हैं, जहां खैराती इस्तेमाल शुदा कपड़ों की एक बहुत बड़ी लॉट जमा हो चुकी है, जिसे वो बेचना चाहते हैं। लिहाजा इन कपड़ों को किस कीमत पर खरीदा जाएगा। दुकानदार ने नफी में सर हिला दिया कि वो सिर्फ बर्तन वालों से कपड़े लेते हैं। क्या हिसाब ले रहे हो? वो कपड़े क्या हिसाब ले रहे हो? अबे उसमें गाड़ी लग रही है, अपनी गाड़ी का काम करो। डाइट पैसा काम कर रहा है पहले, अब अलग कर रहे हैं। स्पाई नुमाइंदे अभी दुकान में मौजूद थे कि एक और दुकानदार वहां पहुंच गया। स्पाई नुमाइंदों ने उससे भी इस्तेमाल शुदा कपड़ों के एवज कीमत का मालूम किया, लेकिन उस दुकानदार ने भी कीमत बताने से इनकार कर दिया कि पहले माल देखेगा फिर रेट बताएगा। कपड़े लेना चाहिए। किधर है? किधर है कपड़े? कपड़े तो ये होंगे में पड़ेगा अपने को। माल बहुत है। कितना माल है? तकरीबन तो होगा गांव में, गाड़ी बारे बेचना तो है, मीटर आप नहीं तो बेचेंगे। कितना माल है? 10-12 सुजुकी का तो है। वो तकरीबन इतना हो गया। तो उसमें क्या क्या चीज है? ये मर्दाना ज़्यादा उसमें, बच्चों के क्या खुला हुआ है? गठड़ियाँ हैं? गठरी छटा हुआ माल है। पहले भी देख ही रहे हैं मीटर, हम पीछे भी देते रहे यार। हमारा मदरसा था नहीं, हमारा उर्दू तो उनके मदरसा था। माल पहले भी देते थे। हाँ हाँ नहीं, 20 किलो के दाम में ऐसे लोग उठाते हैं। चलो हम सही ले लेगा, आपका नंबर दे दे, हम कल आइडिया तो दो ना, वो देखे तो सही ना भाई, माल देख के आपको बता देगा। माल जो भेज हो वो निकालिए, क्या पर फिर से रात वो आप जाए उधर आ जाएगा, आप देख लेगा, हमारे बच्चों की रोजी मिलेगा तो आपको सौदा बना लेगा। मदरसे का माल है कैसा होता था साहब? देखना ही पड़ता है ना भाई। हमारे देश अभी दुकान में कितना पड़ा, इतने का है, इतने का हमारे को बचत हो जाएगी, इतना आपको देना है, इतना मेहनत। आप वजन के हिसाब लेते हो या ऐसे लेते हो? ऐसे ले लेगा माल। वजन के हिसाब से क्या लेगा? वजन के हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। काफी देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि वो दुकानदार उनके मदरसे पहुंचकर जमा शुदा कपड़े देखेगा
फिर कीमत बताएगा। खुफिया रिकॉर्डिंग्स हासिल होने के बाद टीम गिरफ्त ने जरूरी समझा कि ऐसी नाम नेहाद एनजीओज जो सादा लो आवाम से जमा शुदा कपड़े बतौर इमदाद हासिल करके जिन दुकानों पर फरोख्त करती हैं, इन दुकानों का रुख किया जाए और हकाइक को मंजरे आम पर लाया जाए। लिहाजा टीम गिरफ्त ने रुख किया मंगोपीर के इलाके गर्म चश्मे का, जहां इस्तेमाल शुदा लिबास की खरीदो फरोख्त की जाती थी। टीम गिरफ्त को कई ऐसी दुकानें नजर आईं जिनमें इस्तेमाल शुदा लिबास का अंबार लगा हुआ था। एक ऐसी ही इस्तेमाल शुदा कपड़े की दुकान पर इस वक्त एक सुजुकी कारिंदा कपड़े फरोख्त कर रहा था। हाँ भाई, अस्सलामुअलैकुम। कहाँ भाग रहे हो? नाजरीन, ये भाग रहे हैं, वजह इसकी यही है कि ये वही लोग हैं जिनको हमने एक्सपोज किया। इससे पहले भी ये इनको हम दिखा चुके हैं। टीम गिरफ्त को देखते ही सुजुकी कारिंदा और दुकानदार दोनों रफू चक्कर हो गए। इस मफरूरी से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि साफ शफाफ कारोबार करने वाले जवां मर्दी से मीडिया का सामना करते हैं, जबकि मीडिया को देखकर भागना इनके जालसाज होने की दलील था। कि ये मुख्तलिफ आबादियों से इसी तरीके से कपड़े जमा करके लेकर आते हैं और ये कपड़े जमा करके लेकर आके यहाँ पे अपने पास इन्होंने गोदाम हासिल किए हुए हैं, ये स्टोर करते हैं और इसी कपड़े की छांटी करके दोबारा से बेचा जाता है। मुख्तलिफ एनजीओज़ के नाम पे लोगों से भीख मांगी जाती है। कहा जाता है कि हम यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए काम कर रहे हैं और उसके बाद सूरत हाल ये पेश आती है कि यहाँ पे लाके इन कपड़ों को स्टोर किया जाता है और फिर उसके बाद बाकायदा से बेचा जाता है। ये है उन नाम नहाद एनजीओ के पीछे काम करने वाले लोग, वो एहलकार जो अपने आप को रज़ाकार कहते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इस कहना चाहिए कि एक शर्मनाक कारोबार के अंदर मुलव्विस हैं कि ये यहाँ पे कपड़े लाके बाकायदा से बेचते हैं। ये मंगोपीर की गरम चश्मा की सड़क है और यहाँ पे ये तमाम कार्रवाई होती है। काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पे अतराफ़ में मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे अब लोगों ने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये है यहाँ की सूरत हाल। जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो इससे मुंसलिक इदारे हैं, उनको इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आएँ और बाकायदा से जो भी सूरत हाल है उसको देखते हुए इन नाम नहाद एनजीओज़ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब बारी थी जालसाज एनजीओज की सुजुकी माफिया को बेनकाब करने की। लिहाजा टीम गिरफ्त ने रुख किया कराची के इलाके अजमेर नगरी का। कुछ देर इंतजार के बाद एक सुजुकी को निकलते हुए देखा, जिन्होंने धक्का लगवाकर सुजुकी स्टार्ट की। टीम गिरफ्त ने इस सुजुकी का ताक़ुब शुरू कर दिया। सुजुकी कारिंदे पहले अजमेर नगरी थाने पहुंचे और एक शख्स को साथ बिठाकर फिर एक जानिब चलने लगे। कुछ देर बाद अंडा मोड़ के इलाके में पहुंचकर उस आदमी को उतार दिया और फिर सफर शुरू कर दिया। एक तवील फासला तय करके सुजुकी कारिंदे पहुंचे कराची के इलाके न्यू कराची में, जहां एक जगह रुककर सुजुकी पिकअप में साउंड सिस्टम नस्ब किया और ऐलानात शुरू कर दिए। साथ साथ घरों को दस्तक देकर इमदादी सामान भी मांग रहे थे। ये बेहतर वक्त था। टीम गिरफ्त ने फौरन कार्रवाई का फैसला किया। तो मदरसे ने आपको कोई ऑथराइज किया है इसके लिए? कोई आपके पास मदरसे का कोई लेटर है, कोई कार्ड है, कोई चीज़ है? आपका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर? क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, आपका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर? नाम नहीं उनके पास होता है, उनको पता होता है, बेचते हैं। कलाम पाक के कई आए थे अपनी इसमें लगाए हुए होते हैं, जिस पे बंदा मजबूर हो जाता है देने के लिए कि तैयार कुछ ना कुछ इनको दे रहे हैं। ये माइक लगा के और मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। कौन सी एनजीओ से हैं आप? ये मदरसे से कौन सा मदरसा? मदरसा माफिया। मदरसा माफिया मदरसा कौन सा? मदरसा माफिया। मदरसा माफिया कह रहे हैं, हालांकि मदरसा माविया लिखा हुआ है। गिरफ्त मेजबान के पूछने पर सुजुकी कारिंदे ने बताया कि वो एक मदरसे का रजाकार है और इसी के लिए अतियात जमा करता है, जबकि इसे सही तौर पर मदरसे का नाम भी लेना नहीं आ रहा था। मदरसा कौन सा? मदरसा माफिया। मदरसा माफिया कह रहे हैं, हालांकि मदरसा माविया लिखा हुआ है। माफिया कह रहे थे आप, इसलिए मैंने 2-3 दफा किया। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? ये अंडा मोड़ से अंडा मोड़ से आ रहे हैं। मदरसा किधर है? अंडा मोड़ पे 7 से। गिरफ्त मेजबान ने सुजुकी कारिंदे से इसके मदरसे का आईडी कार्ड और ऑथराइज लेटर दिखाने को कहा, तो इसके पास कोई शनाख्त मौजूद नहीं थी। 2 लोगों के साथ बात भी की है आपने?
काम क्या है आप लोगों का? ये इसी तरीके से मांगते रहते हैं? नहीं, मदरसे की तरफ से आते हैं जब परेशानी होती है कपड़ों की, राशन। सही है। तो मदरसे ने आपको कोई ऑथराइज किया है इसके लिए? कोई आपके पास मदरसे का कोई लेटर है, कोई कार्ड है, कोई चीज़ है? आपका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, आपका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर? नाम नहीं उनके पास होता है, उनको पता होता है, भेजते हैं वो। उनको कैसे पता कि उन्होंने आपको भेज दिया है, या आज के दिन आप किस इलाके में जाके जो है उनके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि आज इस इलाके में पहुंचे हुए हैं आप और उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? आते जब हमारी ड्यूटी लगती है भेजते हैं वो, हम लोग इधर ही आते हैं। तो ड्यूटी कौन लगाता है? कारी साहब है, क्या नाम है? लिखा हुआ तारीख। आपको नहीं पता? अजीज, हैं? अजीज अहमद, अजीज 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 बोलना चाह रहे हैं आप शायद। मदरसे की इमदादी दस्तावेजात पर लैंडलाइन के बजाय मोबाइल नंबर दर्ज थे, जबकि कोई वेबसाइट या ऑनलाइन शनाख्त भी मौजूद नहीं थी। नाजरीन समझ सकते हैं कि एक मोबाइल फोन पर तस्दीक की क्या सदाकत हो सकती थी। क्योंकि जो मदरसा ये कह रहे हैं इसके अंदर कोई लैंडलाइन नंबर नहीं लिखा हुआ है। तमाम जो नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसे नंबर हैं जो मोबाइल नंबर होता है। और इसके अलावा अच्छा, आप अभी मदरसे से होते हुए आ रहे हैं? हाँ, मदरसे से होते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी इनके साथ साथ हम ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके से ही निकले हैं। इनके निकलने से पहले गाड़ी ख़राब थी आपकी, आपने धक्का लगवाया था? हाँ। अच्छा, और फिर उसके बाद एक बंदे को आपने ख्वाजा अजमेर नगरी थाने से उठाया और फिर उसके बाद उसको पावर हाउस चरंगी पे छोड़ा था। तो अंडा मोड़ पे तो आप गए ही नहीं बिल्कुल? नहीं, अंडा मोड़ से ही आ रहे हैं, मैं उधर से अंडा मोड़ से भी ना आए। अंडा मोड़ पे तो आप गए ही नहीं ना, आप तो सीधे इधर आ गए। हाँ, तो उधर जाना था, फिर अभी इधर से उधर ही जा रहे हैं अंडा मोड़ पे। अच्छा, अंडा मोड़ पे जाएंगे। बहरहाल ये बताएं कि कब से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को तो हो गए, बचपन हो गया, बचपन हो गया आते हैं। सुजुकी कारिंदे का कहना था कि वो बचपन ही से इसी काम को कर रहा है, जबकि इससे पहले वो दूसरी एनजीओस के लिए भी काम करता रहा है। बचपन से अब तक यही काम कर रहे हैं और उस दौरान मदरसा अभी तक बनने पे आया नहीं है? पहले वेलफेयर का काम करते थे, अभी मदरसे का। वेलफेयर का कौन सा काम? आगोश। आगोश वेलफेयर का क्या काम करते थे आप? फंड जमा ही करते थे बच्चों के लिए। आपका काम ही यही है, रोजी रोजगार ही यही है, फंड जमा करते हैं मुख्तलिफ लोगों? बचपन से तो आप बता रहे हैं, तो फिर एनजीओस तो चेंज होती रही होंगी ना? पहले वेलफेयर का काम किया, अभी इधर का कर रहे हैं मदरसे। वेलफेयर का क्या काम किया आपने? यही फंड इकट्ठा करना? फंड जमा करते हैं। नाज़रीन, ये जिस इलाके से हम लोग आ रहे हैं इनका पीछा करते हुए ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका है न्यू कराची में। इस वक्त भी हम न्यू कराची के एक किसी सेक्टर में मौजूद हैं, लेकिन कोई वहाँ से तकरीबन कुछ नहीं कुछ 30 ऐसे लोग रहते हैं जो गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हो, जिनके दिल में खौफ खुदा होता है। वो इनकी अपीलों के ऊपर आते हैं और जो इन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी उसके मुताबिक ये इनसे चंदा इकट्ठा करते हैं, भीख मांगते हैं। बाज़ जगहों पे लोग इनको इस्तेमाल शुदा कपड़े भी दे देते हैं। वो इस्तेमाल शुदा कपड़े ले जा के हमने आपको जैसे दिखाया कि मंगो पीर में बाकायदा से इलाके हैं, वहाँ पे गोदाम भी हैं इनके और ऐसी दुकानें भी हैं जो इनसे कपड़े खरीदती हैं। ऐसी बात है? हाँ, जो नई काम पहनने के काम आते हैं वो बेच देते हैं। बेच देते हैं? बेच के क्या करते हैं? राशन वगैरह लेते हैं। किसका राशन लेते हैं? अपना राशन लेते हैं, मदरसे का राशन लेते हैं? मदरसे। मदरसे। तो ये आप ये चीज़ बताते हैं कि हम ये कपड़े बेचेंगे लेते वक्त? किनको? जिनसे ले रहे होते हैं? नहीं। सुजुकी कारिंदे ने खुलकर एतराफ किया कि वो अतियात की सूरत मिलने वाला जमा शुदा कपड़ा फरोख्त कर देता है। और ये भी नहीं बताता है कि ये किस मद में इस्तेमाल होगा जो भी आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आया कि राशन के लिए इस्तेमाल होगा या कपड़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा? नहीं बताते हैं, राशन के लिए आते हैं, कपड़ों के लिए आते हैं इनको। इलाका मकीन भी जालसाज एनजीओस की इन सुजुकी माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दिए। मीडिया को देखकर जैसे उनके दुख का मदावा हो गया। रोजाना सुबह सुबह एक नई गाड़ी आती है, यानी कि गाड़ी पुरानी होती है, रोजाना एक गाड़ी आती है। यहाँ तो पहले लोग गरीब हैं, ये तो खुद मुस्तहक हैं और इनसे ही और लेने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, इनसे पूछो तो भाग जाते हैं। अला आप बताइएगा ज़रा, ये क्या सूरत हाल है आपके पास? यहाँ पे इलाके में इसी तरीके की गाड़ियाँ आती रहती हैं जो ऐलानात करती हैं? हाँ, ऐसी आती रहती हैं। कब से देख रही हैं आप इस तरीके की गाड़ियाँ आपके इलाके में आ रही हैं और चंदा इकट्ठा कर रही हैं? हमें तो भाई 7 साल हो गए इकट्ठा कर। ये तो फराडी है तो 200-300 दिन भगता है, कभी गाड़ी के अंदर, कभी पैदल, कभी ऐसा देते रहते हम।
गरीब यतीम को कुराश क्यों देती हैं आपको जब पता है कि ये लोग सही नहीं? लेते हैं ना, ये जो हम करते हैं हर यही सिलसिला है कि यतीमों का नाम अल्लाह के नाम पे जब लोग अपने आप को देखते हैं कि किसी न किसी हो सकता है कि ये फ्रॉडी ना हो और ये धोखाधड़ी ना करें, शायद कि इनका जो दिया हुआ सदका खैरात है वो किसी जगह पे पहुंच जाए, किसी हकदार तक पहुंच जाए। इसी खौफ खुदा के तहत ये लोग तमाम मोटिवेट होते हैं और इन लोगों को, जो कि हमने आपको दिखाया है कि इनकी बाकायदा से एक आबादी है, बस्ती है, वहाँ पे कल भी हम मंगो पीर के इलाके में थे, उनसे बात करने की कोशिश की तो वो भाग गए वहाँ से। और इसी तरीके की सूरत हाल रहती है। अभी पिछली गली के अंदर भी एक दो साहिबान से जो है मीटिंग करके आ रहे हैं, उनको बता के आ रहे हैं कि मैं फलानी गली में जा रहा हूँ। ऐसे ही था? नहीं, हम वैसे ही पूछ रहे थे, हम बोले थे आप किधर से आए हो, हमने ये पूछा खाली उनसे। आपका पूछने का हक बनता है, कोई भी अगर चंदा इकट्ठा कर रहा हो तो आपका पूछने का हक तो नहीं बनता ना? नहीं, हमने इसलिए पूछा है कि हमने बोला कि आपने तो नहीं लगा। दूसरा पीछे है, पहले वाला जो है गेट बजाएगा, वो आगे निकल जाए, अगला गेट बजाएगा, पीछे वाला जो है वो गेट से चंदा लेगा और इनकी सुजुकी साथ साथ चलेगी। थोड़ा थोड़ा फासले में जाते हैं ये लोग। कितने अरसे से देख रहे हैं आप ये सूरत हाल चल रही है? तो ये 11 से 12 साल हो गए देखते हुए, रोजाना सुबह इनका यही काम है। कब से ये काम कर रहे हैं? मेरे को तो हो गए बचपन हो गया आते हैं। बचपन से अब तक यही काम कर रहे हैं और उस दौरान मदरसा अभी तक बनने पे आया नहीं है? पहले वेलफेयर का काम करते थे, अभी मदरसे का। वो बिल वालिदैन एहसानों, मतलब वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर कोई आदमी पैसे देना चाहता है, उसका वालिद और उसकी वालिदा गरीब परेशान हाल हैं, इलाज मुआवजे की मुस्तहिक हैं, कोई शफकत रियायत की मुस्तहिक है, सबसे पहले वो है वल यतामा वल मसाकीन। आप कितने अरसे से देख रहे हैं इस तरीके की गाड़ियाँ? 10-11 साल से देख रहे हैं इसको। ये बराबर आते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं और इसी तरीके से यतीम मिस्किनों का और इसका उसका के यानी कि इतना, यानी कि दिल में एहसास पैदा कर देते हैं कि कुछ ना कुछ दे दे बंदा, 10, 50, 100 जो भी यानी कि हैसियत है इंसान की, तो बस दे दे। इस तरीके से यानी कि कर देते हैं मजबूर ना, कि कलाम पाक के कई आयतें अपनी इसमें लगाए हुए होते हैं, जिस पे बंदा मजबूर हो जाता है देने के लिए कि तैयार कुछ ना कुछ इनको दे दें। तो ये तकरीबन 10-12 साल से तकरीबन ऐसे ही आ रहे हैं रेगुलर गाड़ियाँ। कई तरह की गाड़ियाँ आती हैं, एक नहीं आती है, इस तरह की कई गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर। यही होता है, सुबह के औकात में आ रही होती हैं गाड़ियाँ तकरीबन? हाँ, सुबह के टाइम ज़्यादा आती हैं। सुबह के औकात में गाड़ियाँ निकालने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ख़वातीन होती हैं, मर्द हज़रात किसी न किसी नौकरी के अपने कारोबार के सिलसिले में घरों से बाहर होते हैं। ख़वातीन क्योंकि नरम दिल होती हैं, इन लोगों की अपील्स के ऊपर चली जाती हैं और फिर उसके बाद सदका खैरात वगैरह दे देती हैं। ये सिलसिला जैसे कि मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे बताया कि ये सिलसिला पिछले 10-12 साल से यहाँ पे जारी है और जो ये साहब मौजूद थे, इनकी बात दोबारा से सुनिए। ये अपने बचपन से यही काम कर रहे हैं। कब से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को तो हो गए बचपन हो गया आते हैं। बचपन से अब तक यही काम कर रहे हैं और उस दौरान मदरसा अभी तक बनने पे आया नहीं है? पहले वेलफेयर का काम करते थे, अभी मदरसे का। नाज़रीन, ये सूरत हाल लोग खौफ खुदा के तहत, जैसे कि साहिबा ने बताया कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी हकदार तक उसका सदका खैरात पहुंचा दें। शायद कि ये लोग धोखेबाजी कर रहे हों, इनसे इनका जो मामला है वो अल्लाह ताला के साथ है, लेकिन अगर किसी एक हकदार तक इनका राशन पहुंच गया, इनका दिया हुआ सदका पहुंच गया, खैरात पहुंच गया, तो ये समझते हैं कि इनका हक अदा हो जाएगा। बहरहाल सिलसिला ये है कि जब 10 से 12 साल से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं तो ख्याल इन लोगों को भी, आबादियों में भी लोगों को रखना चाहिए। हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं है। आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। ख़ास तौर पे आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग मोटिवेटेड होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें क्योंकि उसके सवाब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसी चीज़ को ये लोग बुनियाद बनाते हैं और यहाँ पे आके मुख्तलिफ अपीलें करते हैं। तो बहरहाल ये तमाम मामलात हैं। फ़ैसला आप आवाम ने करना है कि ऐसे लोगों को जो कि बाकायदा से अब एक
منظم کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئے ان لوگوں کو صدقہ خیرات دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ فیصلہ اب آپ کے اوپر ہے۔ ماہانہ 30 سے 40 ہزار روپے کما لیتا ہے، آسانی سے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتا ہے، اور وہ اس کی آمدنی آپ دیکھ لیں کہ وہ زیادہ تر انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، پھر اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کا حصہ جو ہے وہ شراب پہ اور عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ ان کی آبادیاں آپ دیکھیں گے کہ تو وہ وہی مکانات ہیں جو ان کے وہ ہیں، یا انہوں نے ٹیکسیاں کرائے پہ دی ہوتی ہیں لے کے، یا رکشے انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں گاڑی پہ دے کے، یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اس کو بھیک نہیں کہتے۔ اسی طرح 30,000 بچے ہیں، یہ سارا ایک نیکسس ہے، کرمنل گینگز ہیں، اسٹریٹ کرائم کے لوگ ہیں جو، اور وہ حکومت کے لوگ، پولیسنگ کے لوگ کہ جو ان سے اضافی آمدنی رکھ کر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیکورٹی کو دائیوں پہ لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی بیگرز کے روپ میں انٹرنیشنل ایجنسیز کے ایجنٹ بھی ہیں، وہ پاکستان کی حساس نوعیت کی معلومات جو ہیں وہ لیتے بھی ہیں، جمع بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ گزشتہ دہائی میں کچھ ایسے فلاحی ادارے منظر عام پر آئے جنہوں نے بنا کسی تحقیق اور معیار کے شہروں کے معروف چوراہوں پر دسترخوان سجا دیے ہیں، جو سال کے 12 مہینے خیرات جمع کر کے عوام الناس میں کھانے کی مفت تقسیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں مستحقین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بنا کسی محتاجگی کے کمانے کی جستجو نہیں رکھتے، انہوں نے ایسے دسترخوانوں پر بیٹھنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ سنجیدہ ذہن اس سلسلے میں کافی فکر مند دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں مفت دسترخوانوں پر بیٹھا ہوا اپنی خودداری کھو کر کسی اور طرف ہی نہ چل پڑے۔ اس طرح جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں، وہ دراصل حقدار، جائز، غریب، پریشان حال، یتیم، مسکین کا حق مار رہے ہیں، لیکن حکومت اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ تو ان میں اور باضابطہ بھرتا خوروں میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ پیسے دینے والوں کو بھی میں تاکید کرتا ہوں کہ پیسہ کن کو دینا ہے وہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، وہ حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ اپنی دے دیتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، مطلب والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر کوئی آدمی پیسے دینا چاہتا ہے، اس کا والد اور اس کی والدہ غریب، پریشان حال ہیں، علاج معالجے کی مستحق ہیں، کوئی شفقت رعایت کی مستحق ہیں، سب سے پہلے وہ ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم بچے ہیں۔ اب ہمارے پاس بھی یتیم خانے ہیں، میں آپ کے ذریعے بھی کہتا ہوں ایکسپریس ٹی وی کے ذریعے سے کہ آپ کے پاس کوئی یتیم بچے ہیں ہمیں دے دیں، پالنا، پوسنا، ایجوکیٹ کرنا، ان کو پکنک پہ لے جانا، عزت سے رکھنا، یہ ہمارا کام ہوگا تاکہ در بدر کی وہ لوگ بھیک نہ مانگیں۔ مدد کرنے کے معاملے میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں پہلے اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو ارب پتی ہیں اور ماں باپ کو انہوں نے سینئر سٹیزن ہوم میں چھوڑا ہوا ہے، اس کی پرورش خدمت وہ نہیں کر رہے جو ماں باپ نے ان کو بڑا کیا تھا، پالا تھا۔ دوسرے نمبر پر اقربا، آپ کے اعزاء اقربا، ان کا خیال رکھیں۔ تیسرے نمبر پر یتامہ کا خیال رکھیں، جو یتیم ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یتامہ کے بعد آتا ہے مساکین، تو یہ ویسے قرآن کی آیت بھی ہے اور متعدد سیاستہ کی احادیث کے ذریعے سے اس کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ ٹیم گرفت درد مند فلاحی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ جز وقتی امداد کے بجائے امداد برائے خود انحصاری کو فروغ دیا جائے تاکہ من حیث القوم اجتماعی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ مملکت خداداد کی اکثریت عوام غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور غربت کی زندگی میں خودداری کا اختیار رکھنا عزت دار لوگوں کا ہی کام ہے، ورنہ کم ظرف طبقہ تو مشکلات کا سامنا ہوتے ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ بھکاری مافیا کی طرح جعلی NGOs بھی ملک و ملت کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، لہذا ان کے خلاف سخت ترین قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود اغیار کے آگے کشکول پھیلانے والے حکمران اس مسئلے کا کوئی سدباب کر پائیں گے؟ جب تک سادہ لو عوام کے ساتھ جال سازی کو نہیں روکا جاتا، ٹیم گرفت جال ساز مافیا کو بے نقاب کرتی رہے گی۔